بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرحاد علی تیمور، دیوتا، ایک بہت ہی اچھا داستان، ایک ایسے نوجوان کی کہانی جس کی صلاحیتوں نے دنیا بھر کے طاقتور ملکوں اور انسانوں کو دھول چٹا دی۔ اپنے ملک کی بقا کے لیے پوری دنیا سے لڑ گیا، جہاں گیا اپنے نام کا سکہ جمایا۔ جسے بچپن میں نہ ماں کا پیار ملا نہ باپ کا، جو ماں کی گود کو ترستا رہا، جسے نفرت ہی نفرت ملی۔ تو جناب اس کی طرف چلنے سے پہلے آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی قسط آپ کو فوری مل سکے۔ فرحاد علی تیمور، قسط نمبر 4۔ تم بازاری عورت سے بھی بدتر ہو، پتہ نہیں اب تک کتنے کمینوں کے ساتھ تم نے منہ کالا کیا ہے۔ چچا جان نے میرے منہ پر تماچا رسید کر دیا۔ تم میرے سامنے میری بیٹی کو بازاری کہہ رہے ہو، تم خود بازاری ہو، شریفوں کے ہاں رہنے کے قابل نہیں ہو، نکل جاؤ یہاں سے۔ انہوں نے دوسری بار تماچا مارنا چاہا، میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، پھر اس ہاتھ کو پرے جھٹک کر کہا، بس اب مجھ پر ہاتھ نہ اٹھانا، آج سے میں تمہارے تمام رشتے توڑ رہا ہوں۔ تم لوگ بچپن سے مجھے بیوقوف بناتے آئے ہو، جوانی میں تمہاری بیٹی مجھے بیوقوف بنا کر اپنے اشاروں پر نچانا چاہتی ہے۔ میں تم لوگوں کو اچھی طرح سمجھ گیا ہوں، اب میرا یہاں گزارا نہیں ہوگا، میں جا رہا ہوں، مگر یاد رکھنا ایک دن اس کوٹھی کا مالک بن کر آؤں گا اور تم سب کو دھکے دے کر یہاں سے نکالوں گا۔ یہ کہہ کر میں کمرے سے جانے لگا۔ دروازے پر ایک طرف غزالہ اپنی ماں سے لپٹی ہوئی کھڑی تھی، دوسری طرف شہینہ اپنے بھائی ظہیر کے پیچھے کھڑی اپنی کٹورا جیسی آنکھیں پھیلا کر مجھے گھور رہی تھی۔ میں اس کے سامنے آ کر ٹھہر گیا۔ چچا اور چچی دونوں ہی چیخ چیخ کر مجھے چیلنج کر رہے تھے کہ میں ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکوں گا۔ زمین اور جائیداد کے لیے میرے دعوے جھوٹے ہیں، عدالت میرے حق میں فیصلہ نہیں سنائے گی۔ وہ بڑبڑا رہے تھے، لیکن میں نے شہینہ کے سامنے انہیں نظر انداز کر دیا تھا۔ شہینہ، یا جو کچھ ہو رہا ہے تم اس کے متعلق سوچنا اور سمجھنا نہیں چاہیے۔ میں نہیں چاہتا کہ ایسی اخلاق سے گری ہوئی باتیں میری بہن کے کانوں تک پہنچے۔ تم جاؤ یہاں سے۔ وہ میرا ہاتھ تھام کر التجا آمیز لہجے میں بولی، آپ یہاں سے نہیں جائیں گے نا؟ ذرا دیر کے لیے میرا فیصلہ کمزور پڑ گیا۔ میں اس معصوم کو اس گندے ماحول میں چھوڑ کر کیسے جاؤں؟ لیکن یہاں رہ کر میں اس کے لیے کیا کر سکتا تھا؟ ایک بھائی کا فرض پورا کرنے کے لیے لازمی تھا کہ میں وہاں سے چلا جاؤں اور اپنی تمام دولت اور جائیداد حاصل کرنے کے لیے جدوجہد شروع کر دوں۔ میں نے دل پر جبر کرتے ہوئے کہا، میں جاؤں گا اور اپنی اور تمہاری بھلائی کے لیے جاؤں گا۔ 8 سال کی جدائی ہمیں دور نہ کر سکی، آئندہ بھی اس دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ایک دوسرے سے دور نہیں کر سکے گی۔ میں بہت جلد تم سے آ کر ملوں گا۔ ظہیر غصہ اور بے بسی سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اب اس میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ اکڑ کر شہینہ کو مجھ سے باتیں کرتے ہوئے روک دیتا، اس لیے وہ بڑی خاموشی سے شہینہ کا بازو تھام کر ذرا پیچھے ہٹ گیا تاکہ میرے گزرنے کے لیے راستہ بن جائے۔ میں نے اس پر حقارت کی ایک نظر ڈالی اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا کمرے میں آ گیا۔ وہاں آ کر میں نے اپنے کپڑے کتابیں اور دوسرا سامان باندھنے لگا۔ کوئی یہ دیکھنے نہیں آیا کہ میں اس گھر سے کیا لے جا رہا ہوں۔ میں نے اپنے لیے جو بھی چیز ضروری سمجھی اسے اٹھا کر رکھ لیا۔ پھر 1 گھنٹہ کے بعد اپنا بوریا بستر سمیٹ کر میں نے اس گھر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ میں اپنی پھوپھی کے ہاں چلا آیا۔ پھوپھی شاہدرہ میں رہتی تھی، پھوپھا کا انتقال ہو چکا تھا۔ وہ ایک اسکول میں بچوں کو پڑھایا کرتی تھی۔ ان کی لڑکی زرینہ تقریباً میری ہم عمر تھی۔ 3 وقت کی روٹیوں کے لیے وہ بھی محلے والوں کے کپڑے سیتی تھی۔ دونوں ماں بیٹی محنت مزدوری کر کے عزت آبرو سے زندگی گزار رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر پھوپھو میری بلائیں لینے لگی۔ میں نے کوٹھی چھوڑنے کی تفصیل سنائی تو وہ چچا جان کو کوسنے اور گالیاں دینے لگی۔ وہ 2 کمروں کے ایک کچے مکان میں رہتی تھی۔ انہوں نے ایک کمرہ میرے رہنے کے لیے مخصوص کر دیا۔ میں یہ سوچ کر آیا تھا کہ اب کہیں ملازمت کروں گا اور ان پر بوجھ نہیں بنوں گا۔ میں نے اسی وقت ان سے کہہ دیا کہ میں ان کا بیٹا بن کر اس گھر کے اخراجات پورے کروں گا۔ یہ سن کر وہ ناراض ہو گئی۔ انہوں نے ذرا سمجھا کر اور ذرا ڈانٹ ڈپٹ کر اپنا فیصلہ سنا دیا کہ مجھے اپنی تعلیم جاری رکھنی ہوگی۔ ہم رات گئے تک باتیں کرتے رہے۔ پھر میں اپنے کمرے میں سونے چلا آیا۔ بستر پر لیٹنے کے بعد مجھے نیند نہیں آئی۔ بہت سی سوچیں دماغ میں لپک لپک کر آ رہی تھی۔ چچا کی مکاریوں نے مجھے اپنی عمر سے زیادہ سوچنا سکھا دیا تھا۔
गहरी संजीदगी से सोच रहा था कि इनसे अपना हक छीन लेने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, किन लोगों का तावन हासिल करना चाहिए। साहब भी इसे तावन की तवक्को थी, मगर चचा से हकीकत को अच्छी तरह समझ गए थे कि मेरी तरफ से मुकदमाबाजी के लिए कोई अदालत तक नहीं जाएगा, क्योंकि मेरे अजीज़ों कारब ही सब गरीब थे। जिनके पास थोड़ी बहुत पूंजी थी वो उसे मेरी खातिर दांव पर नहीं लगा सकते थे। अजीब हालात हो रहे थे, हर तरफ एक खामोशी सी छाई लगती थी। चचा के मुतल्लिक सोचते सोचते गुजाला की बेहयाई याद आ गई। इस वक्त मुझे अपनी हमाकत का एहसास हुआ कि जब वो लड़की बेहया बन गई थी तो मैंने शराफत क्यों दिखाई। शायद इसलिए कि इस वक्त तक मैं चचा के रिश्ते का ख्याल कर रहा था और मैं ये भी नहीं जानता था कि एक न करदा गुनाह का इल्ज़ाम मुझ पर ऐद कर दिया जाएगा। अब वो दुश्मन की बेटी थी। इस वक्त वो मेरी नज़रों में किसी बाजारी औरत से कम नहीं थी, जिसे कोई भी हासिल कर सकता था और जिसे मैं भी हासिल करके वक्ती तौर पर इंतकामी जज्बे को सुकून पहुंचा सकता था। मगर अब वक्त गुजर चुका था। मैं बिस्तर पर लेटा करवटें बदल रहा था। मेरी जवान नज़रों का पहला नज़ारा था, मैं उसे भूल नहीं सकता था। कहते हैं कि चिराग से चिराग जलता है, इस तरह एक बदन के तस्वर से दूसरा बदन रोशन हो गया। न जाने कैसे इस तस्वर में जरीना का सरापा झलकने लगा। शायद इसलिए कि वो भी लड़की थी, जवान थी, गजाला की तरह उसका रंग भी उजला था। तौबा तौबा, मैं अपने दोनों गालों को पीटने लगा। एक बेहया के मुतल्लिक सोचते सोचते मैं अपनी इस मुसना का तस्वर कर रहा था जिसके घर में न जाने अपनी ज़िंदगी का कितना हिस्सा गुजारना था। मैंने चिल्लाकर जोर से अपने मुंह पर तमाचा रसीद कर दिया। कहता जरीना के मुतल्लिक कोई सस्ता ख्याल मेरे दिमाग में ना आए। एक बात कह दूं कि हमारे तस्वर की आंखें हर जवान लड़की के लिए नंगी नहीं होती। शायद शहीना जवान हो चुकी थी, लेकिन उसके तस्वर के साथ ऐसी पाकीज़गी जन्म लेती थी जो सिर्फ बाप और बेटी और भाई और बहन के रिश्तों में होती है। हकीकतन मैं एक बाप की तरह उसे गोद में खिलाया था और उसे भाई की मोहब्बत दे रहा था। उसके बरकस जरीना से इतना गहरा लगाव नहीं था, इसलिए गजाला और जरीना मेरे ज़हन में गुडबंड हो गई थी। वो रात सोते जागते और सोचते हुए गुजर गई। सुबह किसी ने मेरे शाने को होले से झंझोड़ कर जगाया। आँख खोली तो निगाहों के सामने जरीना थी। मुझे यूं लगा जैसे अब तक इसके मुतल्लिक सोच रहा हूँ। मैंने जल्दी से आंखें बंद कर ली। उसकी मुतरन्नम आवाज़ कानों में रस घोलने लगी। उठ जाइए, 10 बज रहे हैं, अम्मी स्कूल चली गई है। जाते वक्त उन्होंने कहा था कि मैं आपको ना जगाऊं, मगर ऐसा भी क्या सोना, बाहर जाकर देखिए धूप निकल आई है। क्या बड़ी कोठियों वाले इसी दिन चढ़े तक सोते रहते हैं? अब मैं कोठी वाला कहाँ रहा। मैं तो इसी मकसद के लिए वहाँ से आया था कि वो कोठी तमाम जायदाद हासिल कर लूँगा। अगर इस तरह सोता रहा तो शायद कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं होगा। मैंने इस वक्त दिल ही दिल में अहद किया कि आज से नींद के नशे और आराम तलबी से गुरेज करूँगा। आज से मेरे लिए आराम हराम है। ये अहद करके मैंने आंखें खोल दी। वो निगाहों के सामने मुस्कुरा रही थी। जैसे सुबह मुस्कुराती है वैसे ही उसके चेहरे पर ताजगी थी। पूरी आंखें, खड़ी नाक, रस भरे होंठ, बैजवी चेहरा चेहरे से नीचे नजरें गई तो मैंने फौरन आंखें झुका ली। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। और गुजाला ने मुझसे कितनी जबरदस्त दुश्मनी की थी। अब भी मेरी हथेली के साए में रेशमी धड़कनें बज रही थी। एक से मुतारफ होकर दूसरी की तरफ ख्याल बहक रहा था। मैं जल्दी से उठकर नजरें चुराते हुए मुंह हाथ धोने चला गया। मुझे याद नहीं कि मैंने किस तरह नाश्ता किया, किस तरह जरीना का सामना करते से कतराता रहा। जब 1.5 घंटे बाद शाहकोट जाने वाली बस में आकर बैठा तो इस वक्त सोच रहा था कि मुझे पुप्पी के यहाँ नहीं रहना चाहिए। मैं बहुत जल्द कहीं मुलाजमत तलाश करूँगा। मुलाजमत ना मिली तो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊँगा और किसी दूसरी जगह अपनी रहाइश का इंतज़ाम करूँगा। इंसान सोचता कुछ है, होता कुछ है। मुझे ज़मीनों के चक्कर से इतनी फुर्सत नहीं मिली कि मैं अपने खाने पीने और रहने का अलग ठिकाना बनाता। मैं रोज़ सुबह शाहकोट जाता और शाम को वापस आता। कभी पटवारी से मुलाकात ना होती, कभी मुलाकात होती तो वो अपनी मसरूफियात का बहाना करके मुझे टाल देता। वो मुझसे कह चुका था कि ज़मीनों का असल मालिक नासिर अली है, लेकिन मैं देखना चाहता था कि रिकॉर्ड में ज़िम्मेदार की हैसियत से किसका नाम दर्ज है। चचा ने उसके पीछे अच्छी खासी रकम सर्फ की थी। आखिर एक दिन उसने साफ तौर पर कह दिया कि वो अपना रिकॉर्ड नहीं दिखाएगा। अगर मैं देखना चाहूँ तो किसी वकील के जरिए अदालत में दरख्वास्त देकर
पास शाहकोट आने जाने के लिए भी पैसे नहीं थे। मैं किसी वकील की खिदमत कैसे हासिल कर सकता था। पुप्पी अपनी हैसियत से ज़्यादा मेरा बोझ उठा रही थी। इनके मजबूर करने पर मैंने कॉलेज में दाखिला ले लिया। 2-4 रिश्तेदारों ने मुझे समझाया कि मैं वकीलों और अदालतों के चक्कर में ना पड़ूं, क्योंकि ज़मीन का झगड़ा कभी 1-2 पेशियों पर ख़त्म नहीं होता। साल तक मुकदमा चलता रहता है। जिनके पास दौलत होती है वही ऐसे मुकदमेबाजियाँ करते हैं। मैंने बज़ाहिर इनके मशवरों को तस्लीम कर लिया, लेकिन मेरा दिल उलझा हुआ था। कभी फुप्पी की गुर्बत का ख्याल सताता था और कभी चचा से इंतकाम लेने का भूत सर पर सवार हो जाता था। कई बार मैंने सोचा कि इस मकार चचा को कत्ल कर दूं और उसके साथ उनकी औलाद का भी खात्मा कर दूं, ताकि इनके अंदर नस्ल ही ख़त्म हो जाए और कोई मेरी दौलत से फ़ायदा उठाने वाला ना रहे। लेकिन इस तरह मैं मुजरम बन जाता और मेरा हक भी मुझे ना मिलता। ऐसे ही वक्त मैंने कई बार सोचा कि मुझे किसी तरह कोई गैबी ताकत हासिल हो जाए, जिसके ज़रिए मैं अपनी ज़मीन जायदाद इनसे छीन लूँ। ये इंसान की फितरत है कि जब उसे कामयाबी का सीधा और सही रास्ता नहीं मिलता तो वो गलत रास्तों का अख्तियार करता है। कभी मुजरमों की तरह सोचता है और कभी ख्याल ही ख्याल में आरजू करता है कि कहीं उसे तिलस्मी चिराग मिल जाए या हजरात का इल्म हासिल हो जाए, ताकि वह दुश्मनों को ज़ेर कर सके और ज़मीन में छुपे हुए खजाने हासिल करके इस दुनिया का अमीर तरीन शख्स बन जाए। मैं भी कुछ इस अंदाज से सोचने लगा। मेरे अंदर इंतकाम का लावा पक रहा था। कोई रास्ता ना पाकर और कोई ऐसा पुरस्कार इल्म सीखना चाहता था जिससे मेरे दुश्मन दहशतज़दा होकर मेरे कदमों में झुक जाए। ये बचकाना ख्यालात थे, लेकिन जैसा कि मेरी आदत थी, मैं जिस चीज़ को देखता उसमें अपनी नज़रें पेवस्त कर देता था और जो सोचता इसी ख्याल पर अपनी तवज्जो मरकूज कर देता था। इस आदत के मुताबिक मेरी तवज्जो इसी ख्याल पर कायम होगी कि मुझे कुछ न कुछ हासिल करना चाहिए, यानी कोई पुरस्कार इल्म हासिल करना चाहिए या कोई जलाली वजीफ़ा पढ़ना चाहिए या चिल्ला कशी करनी चाहिए या फिर कोई काला जादू सीखना चाहिए। काले जादू का ख्याल मैंने दिल से निकाल दिया, क्योंकि इस्लाम में जादू टोने और सल्फी अमल में ममानत है। मैं कोई ऐसा अमल सीखना चाहता था जिसके ज़रिए चचा मेरे ज़ेरे असर आ जाए और बिला चूत चरा तमाम ज़मीन जायदाद मेरे वाले कर दे। एक इल्म एप्रेंटिज़म है जिसके ज़रिए मैं इन्हें अपना मती व मामूल बना सकता था। एक इल्म है टेलीपैथी, यानी ख्याल ख्वानी के ज़रिए उनके दिमाग में छुपी हुई बातों को पढ़ सकता था। मेरे शनासाओं में ऐसे अलूम सिखाने वाला कोई उस्ताद या रहनुमा नहीं था। मैं बाज़ार से इस सिलसिले में किताबें खरीद कर इन अलूम को पढ़ने, समझने और सीखने लगा। वो किताबें मुझे ज़िंदगी के एक नए मोड़ पर ले आती। ये सच है कि महज किताबों से मुकम्मल इल्म हासिल नहीं होता। इसके लिए किसी बड़े आलमो आमल के मुशाहदात तजर्बात से रहनुमाई हासिल करनी पड़ती है। फिर भी इन किताबों से इतना फ़ायदा ज़रूर हुआ कि मैं इन अलूम को समझने और सीखने के इब्तदाई मराहल से गुजरता चला गया। जो हजरात एप्रेंटिज़म और टेलीपैथी से दिलचस्पी रखते हैं वो तकाज़ की तवज्जो अहमियत को अच्छी तरह समझते हैं। तकाज़ तवज्जो के बगैर इस मैदान में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा जा सकता, और मैं तो बचपन से ही तवज्जो और ख्याल की कुव्वत को किसी एक मुकाम पर मरकूज कर देने का आदी था। लिहाजा शमा बीनी की मशकों के दौरान मुझे कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। रात को जब सन्नाटा छा जाता और किसी की मुदाखलत का खदशा न होता, इस वक्त मैं अपने कमरे में मोमी शमा रोशन करता और शमाल की तरफ रुख करके बैठ जाता। शमा की लो को एकटक देखता रहता। शमा बीनी के दौरान मेरी तवज्जो सिर्फ इस ख्याल पर कायम रहती कि मेरी आंखों में मकनातीसी कुव्वत पैदा हो रही है। मैं जिसे चाहूँगा अपनी निगाहों के शिकंजे में जकड़ सकता हूँ। गर्चे पहले मरहले में मुझे ऐसी जाराना तर्ज की बातें नहीं सोचनी चाहिए थी, मगर अपने ख्यालात से मजबूर था। इस अमल के दौरान मेरे दुश्मन पेश नज़र रहते थे। फिर रफ्ता रफ्ता मैंने अपने जोश और जज्बों पर काबू पा लिया। नहायत सुकून और संजीदगी से शमा का मुशाहदा करने लगा। मैं जलती हुई लो पर नजरें जमाए दिल ही दिल में कहता था, इस रोशन लो में जो चमक है वो मेरी आंखों में उतर रही है। इसमें जो गर्मी हरारत है वो मेरी हरारत मेरी निगाहों में पैदा हो रही है। कई माह तक बिला नागा ये मशक जारी रही। इब्तदा में कदर मायूसी हुई, चूँकि चंद माह के अरसा में ही मैं खुद को एप्रेंटिज़म का महर समझने लगा था। खुद को महर आमल समझकर वक्तन फ़वक्तन दूसरों की घूरती हुई नज़रों से देखता था और इन्हें अपने ज़ेरे असर लाने की नाकाम कोशिश करता था। कई बार नाकाम होने के बाद मुझे अकल आ गई।
اتنا آسان ہوتا تو آج ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اپناٹائزم کے ماہر نظر آتے۔ اس عمل کے حصول کے لیے صبر و تحمل، خود اعتمادی اور کڑی مشقوں کی ضرورت تھی۔ اس عمل کے حصول کے لیے لہذا پھر ایک اور بار میں سنبھل گیا اور دوسروں کے سامنے اپنی مقناطیسی آنکھوں کی نمائش کرنے کی بجائے صرف اپنی ذات میں ڈوب کر شمع بینی کی مشق کرنے لگا۔ کچھ عرصہ بعد میں نے محسوس کیا کہ شمع کی لو پھیلتی ہوئی میری نگاہوں کا احاطہ کر لیتی ہے۔ چاروں طرف مجھے اس گرم لو کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ اس طرح مجھے گرمی کا احساس ہونے لگا۔ پہلے میں اپنے جسم میں رینگنے والی حرارت سے گھبرا گیا، پھر رفتہ رفتہ اس کا عادی ہو گیا۔ اب شمع کا وہ ننھا سا شعلہ میرے دماغ کو چھوتا تھا، میری آنکھوں میں اترتا تھا اور نگاہوں سے خارج ہوتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ یہ احساسات تھے میرے عملی طور پر کہاں تک میں کامیاب ہو چکا تھا یہ میں نہیں جانتا تھا۔ ویسے میرے کالج کے ساتھی اکثر کہا کرتے تھے کہ میری آنکھوں میں کچھ عجیب سی کشش پیدا ہو گئی ہے۔